Hello everyone, I am Dr. Amita Sharma from Bansal Academy, and today I am going to discuss a very important topic, that is signal transduction, and in that we are going to study signaling of RTKs or receptor tyrosine kinases. Why signal transduction topic is chosen? Because this is very important from exam point of view, and also it's an interesting topic. You can learn it like a story, that which molecule is going to activate another molecule, what response are we going to get, and what is ligand, what is receptor, how signal is transduced. That means one signaling protein or one molecule is going to activate another, and in this way they pass information from one molecule to another and ultimately will get a response. So signal transduction में basically transduction और you can say transmission of signal from one molecule to another, so that कि अगर एक हमारे पास signal आता है, what is signal? Signal can be any factor. It can be a temperature change, it can be light, it can be change in concentration of chemicals, any particular chemical, ligand, any hormone, anything can act as signal. But for every signal there must be a receptor in the cell. In the CSIR part C section, you will get long questions with a long story, that a signal transduction scenario is happening and what response are we going to get. They will ask you definitely this question. And in other exam, DBT, GATE, ICMR, ICAR, ARS NET, you name any exam and you will get a question of signal transduction. We are going to study and learn about a very important topic of signal transduction, that is RAS-RAF pathway. So before that, signal transduction, what you understand by signal transduction? Simply we can say signal transduction means where signal is transduced. That means one molecule is passing information to another molecule and then another molecule. We also call it downstream signaling. Once a signal is received by a receptor, receptors may be membrane bound, may be present in cytoplasm, or we call it soluble receptors. So actual में signal transduction में हम क्या study करने वाले हैं? That how signal is passed to the receptor, how signal is sensed by the receptor, and how downstream signaling resulted in response. पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि रैस रैफ पाथवे हमें कहाँ मिलता है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस. रैस रैफ पाथवे जब भी हमें एग्जाम में दिया हो, वन पॉइंट इज क्लियर, ये पाथवे हमें वहां मिलेगा जहां हम डील करेंगे विद सेल डिविजन्स. रैस रैफ पाथवे बेसिकली डील करता है किसके साथ? सेल डिविजन्स. हम इसको एक अदर फॉर्म में कैसे कह सकते हैं? आपको क्वेश्चन में हो सकता है सेल डिवीजन की जगह सेल प्रोलिफरेशन दिया हो, सेल सर्वाइवल और सेल माइग्रेशन. सो सेल की प्रोलिफरेशन मीन्स बेसिकली डिवीजन, सेल माइग्रेशन, सेल सर्वाइवल. अगर हमें इसके साथ डील करना है तो जनरली रैस रैफ पाथवे देखा गया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे इफ वी आर स्टडिंग मेटाजोन डेवलपमेंट. ओके, सो मेटाजोन डेवलपमेंट में हम सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस का एग्जांपल ले सकते हैं. कॉमनली आपने देखा होगा बुक्स में सी एलिगेंस लिखा होता है, तो उसकी डेवलपमेंट जब हम स्टडी करते हैं मेटाजोन डेवलपमेंट, तो देखा गया है कि इसमें जब सेल डिविजन्स होती हैं, सेल माइग्रेशन होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पाथवे इस इंडिविजुअल में ज़रूर फॉलो किया जाता है. एंड इस पाथवे में सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस में अगर हम देखें तो क्या होता है? बेसिक स्टेप्स सेल डिवीजन से एक्चुअल में हमें डेवलपमेंट मिलती है. डेवलपमेंट किस चीज़ की? डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स, development of vulva, uterine development we can say, and sometimes development की जगह क्योंकि वो बनना स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए वर्ड इंडक्शन भी यूज किया जाता है. सो इंडक्शन ऑफ स्पिक्यूल्स, वल्वा और यूटेराइन डेवलपमेंट बेसिकली हम कह सकते हैं सी एलिगेंस में मिलता है, जिसको कलेक्टिवली हम मेटाजोन डेवलपमेंट कह सकते हैं. और उसमें जो हमें पाथवे मिलता है दैट इज रैस रैफ पाथवे. इवन इन सी एलिगेंस मायोब्लास्ट माइग्रेशन भी देखा गया है ड्यू टू दिस पाथवे. सो दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाजोन डेवलपमेंट. अब हम ये देखेंगे बेसिकली इस पाथवे में होता क्या है. तो रैस रैफ बेसिकली इसमें जो सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स हैं जो आगे सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे हैं, रैस और रैफ उसमें इन्वॉल्व हैं. सो वी कॉल इट रैस रैफ पाथवे. सो लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक मैकेनिज्म सिग्नल ट्रांसडक्शन का क्या है.
Now we'll see signal transduction कैसे होगा RAS-RAF pathway में. So in signal transduction, first the receptor will interact with the ligand. Here ligand is a hormone and most probably we take it growth factor. ग्रोथ फैक्टर हार्मोन और वी सिंपली कैन से लाइगेंड, क्योंकि सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये क्लियर है. बेसिक्स क्या है सिग्नल ट्रांसडक्शन का? दैट अ लाइगेंड विल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर. लाइगेंड हो सकता है या सिंपली हम उसको सिग्नल कह सकते हैं. सो यहाँ जो सिग्नल है या लाइगेंड है दैट इज अ हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर इज द हार्मोन. इट इंटरैक्ट्स विद द रिसेप्टर. सो हमें ये रिसेप्टर शो किया है. एवरी रिसेप्टर हैज 3 पार्ट्स. The part which is external to the cell, extracellular domain, we call it extracellular domain. So this portion represents EC domain. EC means extracellular domain. The part which is incorporated in the plasma membrane, that is transmembrane domain. And the part which is towards the cytoplasmic side, that is cytoplasmic domain. Or we can also say it intracellular domain. Outermost extracellular domain, then central transmembrane, then internal intracellular domain or cytoplasmic domain. So ये हमने receptor show किया है and mostly in the RAS-RAF pathway जो हमारे पास receptor है that is receptor tyrosine kinases. Simply हम उनको RTKs कहते हैं, very important receptors. So this is receptor tyrosine kinases. सिग्नल ट्रांसडक्शन में हमेशा ये पॉइंट याद रखना है कि जो नेम्स है होते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स के, रिसेप्टर्स के, आपको उसी से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है. लाइक अगर हम यहाँ रिसेप्टर का नाम लिख रहे हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, दैट मीन्स बाय नेचर दे आर काइनेजेस. What are kinases? Which phosphorylate other proteins और ऑटोफॉस्फोराइलेशन भी कर सकते हैं और सेल्फ खुद की भी फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं, किसी और प्रोटीन का भी फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं. फॉस्फोराइलेशन मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एट स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू. अब हमें ये देखना होता है जो काइनेज है वो जिस रेजिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम दिया जाता है. लाइक यहाँ हमने नाम दिया टायरोसिन काइनेजेस. दैट मीन्स ये जो काइनेज है, ये जो रिसेप्टर है, ये अगर खुद की फॉस्फोराइलेशन करवाता है या किसी और प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवाता है तो कौन से रेजिड्यू पे करवाएगा? टायरोसिन पे. इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया? टायरोसिन काइनेजेस. एंड इट्स अ रिसेप्टर, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? आरटीके. दैट मींस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस. एंड आरटीकेज आर ऑलवेज मेम्ब्रेन बाउंड. इसका मतलब वो हमेशा आपको मेम्ब्रेन में प्रेजेंट मिलेंगे. मेम्ब्रेन बाउंड है, सॉल्युबल रिसेप्टर्स नहीं है. सॉल्युबल हम उन्हें कहते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं सेल के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है. तो ये क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है इसलिए हम कहेंगे दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड. सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. RAS-RAF पाथवे में हम देखें तो RAS-RAF पाथवे में यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द रिसेप्टर इन्वॉल्व्ड इन RAS-RAF पाथवे? RTKs, and they are kinases. What type of kinases? Which phosphorylate at tyrosine residues. ठीक है, अब हमारे पास रिसेप्टर हमने देख लिया, लाइगेंड हमें पता चल गया, ग्रोथ फैक्टर. तो अब जैसे ही ग्रोथ फैक्टर इंटरैक्ट करेगा विद आरटीकेस, आरटीकेस जो होते हैं हमेशा डाइमर की फॉर्म में इंटरैक्ट करते हैं. वो पहले से डाइमर हो सकता है या लाइगेंड आने पे डाइमर बना सकते हैं. तो अगर हमने यहाँ शो किया तो हम एक लाइगेंड शो कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन और 2 रिसेप्टर्स शो कर रहे हैं. तो दैट मीन्स ये क्या बन रहा है? दिस इज आरटीके डाइमर. मीन्स 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो एक लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो जैसे ही हार्मोन बाइंडिंग हो जाता है, डाइमराइजेशन हो गया, वी कॉल इट. अब जो आरटीकेज हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे. तो आरटीकेज में क्या हो जाता है? फॉस्फोराइलेशन वी कैन शो. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हमेशा साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे शो करना है, क्योंकि एक्चुअल में जो आपने टायरोसिन काइनेज कहा है, जो उसकी काइनेज एक्टिविटी है वो हमेशा आपको साइटोप्लाज्मिक डोमेन में मिलता है. साइटोप्लाज्मिक डोमेन जो होता है दैट शोज काइनेज एक्टिविटीज. दैट मीन्स इट विल शो फॉस्फोराइलेशन ऑन द साइटोप्लाज्मिक डोमेन. वो खुद की भी कर सकते हैं, किसी और की भी कर सकते हैं. सो अगर सपोज हमने यहाँ शो कर दिया फॉस्फोराइलेशन हो गया, दैट मीन्स आरटीकेज आर नाउ एक्टिव. नाउ वी कैन से हमारे पास क्या बन गया? ये हार्मोन व्हेन बाइंड्स टू आरटीके डाइमर बन गया. हम इसे सिंपली क्या कह देंगे? दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. आप इसको हार्मोन भी कह सकते हो और लाइगेंड भी कह सकते हो.
सो अब आपके पास जैसे ही हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर इंटरेक्ट्स विद आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, वो दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम कह देंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और सिंपली लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्ट स्टेप हमेशा सिग्नल ट्रांसडक्शन में यही होता है दैट लाइगेंड बाइंड्स विद दिस रिसेप्टर। अब अगर लाइगेंड और रिसेप्टर बाइंड कर गए, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स बन गया। नाउ विल गेट डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग। डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मीन्स दे विल एक्टिवेट अदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स अलोंग द पाथवे। लास्ट हमें कहाँ जाना होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस में कोई एक्सप्रेशन चेंज होता है, जिस या साइटोप्लाज्म में भी कोई चेंज आ सकता है, जिससे अल्टीमेटली आपको कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिलेगा। सो सिग्नल ट्रांजेक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ? वेरी फर्स्ट स्टेप इज बाइंडिंग ऑफ hormone or ligand with its receptor and we get hormone receptor complex. So after this, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है, देन दिस आरटीके जिसमें फॉस्फोराइलेशन हम शो कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन ऑब्वियसली कौन से रेजिड्यू पे होगा? ये जो रेजिड्यू होगा दैट विल बी टायरोसिन। जो भी रेजिड्यू हम शो कर रहे हैं दैट विल बी टायरोसिन, और डिफरेंट साइट्स हो सकती हैं टायरोसिन की जहां फॉस्फोराइलेशन होगा। नाउ दिस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन कैन एक्ट एज साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ अदर प्रोटीन्स। लाइक यहाँ पे क्या होता है, जब फॉस्फोराइलेशन हो जाता है टायरोसिन का, देन इसके साथ बाइंड करता है वन प्रोटीन GRB2। GRB2 इसके साथ बाइंड करता है, बट माइंड इट दैट GRB2 कैन ओनली बाइंड टू फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू। नॉन फॉस्फोराइलेटेड के साथ वो बाइंड नहीं कर सकता। दैट मीन्स हमें GRB2 की बाइंडिंग कब मिलेगा? जब आपके पास रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी तो इसकी फॉस्फोराइलेशन होगा एट द टायरोसिन रेजिड्यू। नाउ GRB2 बाइंड्स विद फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन। GRB2 हैज अ स्पेशल डोमेन SH2 डोमेन। GRB2 कैसे बाइंड करता है विद फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन? बिकॉज इट हैज SH2 डोमेन। दिस डोमेन helps to bind to phosphorylated tyrosine residues. ठीक है, इसका मतलब अगर ये डोमेन प्रेजेंट होगा, आरटीकेस के केस में याद रखना है हमेशा SH2 डोमेन, एक पीटीबी डोमेन, दो डोमेन्स होते हैं। अगर वो प्रोटीन के पास प्रेजेंट हैं, वही प्रोटीन्स फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ बाइंड कर सकती है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ एक एग्जांपल क्या लिया कि यहाँ एक GRB2 प्रोटीन आके बाइंड करेगा, और GRB2 उसके साथ क्यों बाइंड कर पा रहा है? बिकॉज इट हैज SH2 डोमेन। ठीक है, अब जैसे ही GRB2 इसके साथ बाइंड करता है, GRB2 के साथ अब बाइंडिंग हो सकता है SOS। ये इंपॉर्टेंट है GRB2, इसको हम एक और नाम देते हैं। GRB2 इज एन अडेप्टर प्रोटीन। ठीक है, सो अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें, अडेप्टर का मतलब क्या होता है? वी कैन से विच लिंक्स टू डिफरेंट थिंग्स। सो यहाँ हम कह सकते हैं दैट GRB2 इज लिंकिंग टू डिफरेंट प्रोटीन्स। वन इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, उसके साथ वो बाइंड करता है और उसके बाद वो एक साइट प्रोवाइड करता है फॉर बाइंडिंग ऑफ SOS। सो GRB2 एक अडेप्टर एक्ट कर रहा है बीच में और दो चीजों को वो लिंक कर रहा है, वन इज RTK एंड वन इज SOS। सो GRB2 हमने कह दिया वो RTKs के साथ बाइंड कैसे करता है? बिकॉज इट हैज SH2 डोमेन। Likewise, GRB2 can bind to SOS. SOS उसके साथ कैसे इंटरैक्ट कर पाता है? क्योंकि GRB2 के पास एक और डोमेन है SH3 डोमेन, and this domain helps to bind with SOS protein. So ये डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टडीज में अब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं. So this question is very important that SOS can bind with GRB2 because GRB2 has SH3 domain. Likewise, GRB2 can bind with RTKs because GRB2 has SH2 domain and GRB2 is acting as an adapter. One side it has RTK, one side it has SOS. So एक तरह से वो adapter protein का काम कर रहा है so that वो SOS को activate कर पाए. SOS की binding से SOS protein is activated. अभी तक हम जो भी चीजें शो कर रहे हैं सब membrane bound है. हम simplicity के लिए इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि ये सारी proteins जो है वो membrane के साथ bound है. ठीक है, अब आपके पास स्टेप्स वाइज अगर हम देखें तो क्या हुआ? फर्स्ट हमने कहा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज मेड, देन
activation of GRB2 or you can say binding of GRB2. GRB2 is acting as an adapter protein. उसके बाद बाइंडिंग किसका हो जाता है, SOS का. Now SOS जब एक बार बाइंड कर जाता है GRB2 के साथ, SOS का आगे काम क्या है, it will activate another downstream signaling protein. SOS जो होता है that will activate RAS. RAS पाथवे में हमने नेम क्यों दिया, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली वो वाली प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी. सो SOS will activate, we can show this way. RAS if bound to GDP, that is inactive, but RAS if bound to GTP, that is active. ऑब्वियसली यहाँ पे उसने GTP मॉलिक्यूल यूज किया होगा. सो SOS क्या करता है, RAS की जो इनएक्टिव फॉर्म है, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, RAS की इनएक्टिव फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देता है, RAS एक्टिव फॉर्म. ऑब्वियसली कैसे करेगा, क्योंकि वो GDP की जगह GTP रिप्लेस कर देगा. तो SOS का काम क्या है आगे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम अब सिग्नल ट्रांसडक्शन चल रहा है, दैट मीन्स GRB2 ने जस्ट एक अडेप्टर का काम किया, उसने SOS की एक्टिवेशन करवा दी बाय लिंकिंग. ठीक है, अब SOS जब एक्टिवेट हो गया, वो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो RAS-RAF पाथवे में RAS प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा. सो RAS एक्टिवेट कैसे होगा, जब उसमें जस्ट GDP की जगह GTP रिप्लेस कर दिया जाएगा. नाउ दिस इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे शो कर रहे थे, बट अदरवाइज उसने जस्ट उसको एक्टिवेट कर दिया. ठीक है, अब RAS एक्टिव हो गया, दिस विल एक्टिवेट RAF प्रोटीन. ठीक है, जो RAS एक्टिव है इट विल एक्टिवेट, हम इस तरह से शो कर सकते हैं, RAF. ठीक है, RAF की एक्टिवेशन कैसे होगी, बाय फॉस्फोराइलेशन. सो RAS की एक्टिवेशन हुआ बाय GTP बाइंडिंग, रिप्लेस कर दिया GDP की जगह GTP, तो RAS एक्टिव हो गया. देन RAS क्या करता है, RAF की एक्टिवेशन कर देता है बाय फॉस्फोराइलेशन. अब RAF तक जो हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन किया, दैट इज ऑल मेम्ब्रेन बाउंड. सब कुछ, सब जितनी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं, सब मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है. नाउ इफ RAF इज एक्टिवेटेड, देखा जाए तो आपके पाथवे का नाम इसलिए रखा गया है RAS-RAF पाथवे. ठीक है, हम देख रहे हैं कि RAS एक्टिव हुआ, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, RAF की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और RAF भी एक्टिव हो जाएगा. RAS-RAF, अब ये दोनों एसोसिएटेड होते हैं. ये जो एक्टिव फॉर्म है ये एक्चुअल में इसी के साथ एसोसिएटेड होती है. ठीक है, हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि आप ये जो RAS फॉर्म है इसको यहाँ शो कर सकते हो, क्योंकि RAS भी मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके साथ अब फॉस्फोराइलेटेड RAF इंटरेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया RAS-RAF. तो अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्टिव है. नाउ व्हाट दिस कॉम्प्लेक्स विल डू, अब ये जो RAS और RAF का कॉम्प्लेक्स बन गया एक्टिवेटेड. नाउ दिस विल एक्टिवेट अनदर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन, जिसको हम कह देंगे MEK. सो ये कॉम्प्लेक्स अब एक्टिवेशन करता है किसका, MEK1 और 2 हम कह सकते हैं. और उस एक्टिवेशन कैसे होगा, अगेन फॉस्फोराइलेशन. MEK मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो RAS-RAF कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया किसको, MEK1/2 को. और एक्टिवेशन का मतलब क्या है यहाँ पे भी, दैट दिस विल बी फॉस्फोराइलेटेड. MEK1/2 हम सिंपली शो कर रहे हैं, उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो वो भी एक्टिव हो जाएगा. सो अभी तक के जो स्टेप हमने किए, वी कॉल इट मैप कैस्केड. हम अब देखेंगे मैप कैस्केड कैसे है ये. नेक्स्ट, MEK1/2 एक्टिवेट MAPK, तभी हम इसको मैप कैस्केड कह रहे हैं. मैप कैस्केड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैप कैस्केड का मतलब होता है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज. ठीक है, अगेन ये काइनेजेस हैं तो फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिवेट होते हैं. अब हमने इसको कैस्केड क्यों कहा, कैस्केड का मतलब होता है जब एक चीज दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, वो सेकंड को एक्टिवेट कर रहा है, और साथ साथ सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होता जा रहा है. एम्पलीफाई का मतलब कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हर स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में वो एम्पलीफाई होते जा रहे हैं, एक्टिवेट होते जा रहे हैं. सो मैप कैस्केड में यूजुअली हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैप कैस्केड में सबसे पहले एक आप रिप्रेजेंट करते हो, आप इसको ट्रिपल के लिख सकते हो, क्योंकि हम मानते हैं 3 काइनेजेस हैं, या इसको इस तरह से लिखा जाता है MAP3K. ठीक है, फर्स्ट जो एक्टिवेशन होती है वो इसकी होती है. देन ये किसको एक्टिवेट कर देता है, MAPKK हम लिखते हैं, मीन्स 2 काइनेजेस होते हैं, या फिर उसको हम MAP2K लिख सकते हैं. देन ये किसको एक्टिवेट करता है, MAPK सिंपली.
ठीक है। अब जनरली ये 3 स्टेप्स का देखा जाता है और हर स्टेप पे एम्पलीफिकेशन होता जा रहा है सिग्नल का, और ये कैस्केड बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज में यू कैन सी दिस कैस्केड। सो रैस रैफ पाथवे में भी हमें मैप कैस्केड भी मिल रहा है, मैप काइनेज कैस्केड हम कह सकते हैं। स्टेप्स में जनरली ये 3 टाइप के काइनेजेस होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट को कहते हैं 3K है, क्योंकि ट्रिपल के हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ 2K और यहाँ सिंगल के। तो अब हमने यहाँ देखा, तो आगे यहाँ मैप के तो हमने लिखा, यहाँ उसकी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, वो एक्टिव हो रहा है। सो जनरली जो रैफ है दैट इज MAP3K, मतलब हम कह सकते हैं रैफ एक्चुअल में ये काइनेज है। MEK1 और 2 जनरली MAP2K है, और उसके बाद इसलिए हमने MAPK लिखा सिंपली, और उसकी क्या हो जाएगी फॉस्फोराइलेशन, तो वो भी क्या हो जाएगा एक्टिव। तो अप टू रैस आपके पास देखो SOS तक तो हम ये समझेंगे कि RTKs में GRB2 सिग्नलिंग प्रोटीन अडाप्टर प्रोटीन एक्ट कर रहा है, GRB2 अडाप्टर प्रोटीन एक्ट कर रहा है, और वो SOS के साथ उसको लिंक कर देता है, SOS एक्टिव हो जाता है। अब SOS का काम है रैस को एक्टिवेट करना। आगे रैस बेसिकली मैप काइनेज पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि रैस जो है वो रैफ के साथ एसोसिएट हो जाता है, रैफ को एक्टिवेट करता है, रैफ एक MAP3K है। आगे आपके पास 2 डिफरेंट काइनेजेस और आएंगे, MEK1/2 और MAPK, फॉस्फोराइलेशन उसकी हो जाएगी। तो आपके पास ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैप कैस्केड। नाउ वंस MAPK की फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो आगे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये जो मैप काइनेज है वो साइटोप्लाज्मिक बहुत सारी प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकता है, या वो न्यूक्लियस में जाके बहुत सारी प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकता है, लाइक इट कैन गो टू न्यूक्लियस। सपोज हम ये न्यूक्लियस शो कर रहे हैं, न्यूक्लियस में देखा गया है कि वो MYC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को भी एक्टिवेट करता है। MYC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आगे डिफरेंट जीन्स की आगे रेगुलेशन कर सकता है। किसी जीन में हमें उसका एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्टिवेशन हो जाएगा, किसी जीन का सप्रेशन हो जाएगा, कोई हमें फंक्शन कम मिलेगा। ठीक है, तो MYC माइलोब्लास्टोमा C टाइप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। MYC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिवेशन हो सकती है, TF से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जाके प्रमोटर के साथ बाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर जीन के। ठीक है, आगे जीन का हमें क्या मिलेगा, जीन रेगुलेशन हम कहेंगे, क्योंकि रेगुलेशन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि किसी जीन का एक्टिवेशन भी हो सकता है और किसी जीन का सप्रेशन भी हो सकता है। लाइक MYC मैप कैस्केड जो है वो एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर सकता है, क्रेब। क्रेब का मतलब क्या है, C रिपीट एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सो ये जनरली देखा गया है किसी पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रेस में, बट अदरवाइज हमें इसका रोल और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। लाइक अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बहुत सारे पाथवेज हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिवेशन करनी है, तो वहां भी हमें क्रेब का आपको रोल नजर आएगा। ये C रिपीट एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन है, मतलब बेसिकली ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो C रिपीट के साथ जाके बाइंड करता है। ठीक है, C रिपीट एलिमेंट के साथ। तो मैप कैस्केड जो है आगे चल रहा है, तो आगे आपको न्यूक्लियस में डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्टिवेशन मिलेगा जो आगे न्यूक्लियस में जीन रेगुलेशन करेंगे। या ऐसा भी देखा गया है कि ये जो मैप काइनेज की फॉस्फोराइलेशन से वो एक्टिव हुआ, तो वो साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जिनको एक्टिवेट कर सकता है, लाइक MNK का एक्टिवेशन कर सकता है, RSK का एक्टिवेशन कर सकता है, और ये डिफरेंट प्रोटीन्स आगे डिफरेंट फंक्शंस हमें देती हैं। तो बेसिकली रैस रैफ पाथवे में हुआ क्या, हमें जस्ट ये याद रखना है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, उनके साथ GRB2 SOS प्रोटीन्स इंटरैक्ट करती हैं। GRB2 एक अडाप्टर प्रोटीन एक्ट कर रहा है, SOS रैस की एक्टिवेशन करता है, और रैस की एक्टिवेशन जो होता है वो GTP की बाइंडिंग से होता है। रैस क्योंकि मैप कैस्केड का पार्ट नहीं है, बेसिकली रैस जो है वो डिफरेंट है, मैप कैस्केड का पार्ट नहीं है, वो GTP की बाइंडिंग से एक्टिव होता है। लेकिन आगे जितने हम पढ़ रहे हैं दीज 3 दे आर पार्ट ऑफ मैप कैस्केड, सो इसलिए इन सबकी एक्टिवेशन फॉस्फोराइलेशन से होती है क्योंकि ये सभी काइनेजेस हैं। तो जो रैफ हमने पढ़ा दैट इज MAP3K है, MEK1/2 जो है वो MAP2K है, देन उसके बाद मैप काइनेज एक्टिवेट हो जाता है बाय फॉस्फोराइलेशन। वो डिफरेंट साइटोसोलिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकता है या वो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। दिस इज रैस रैफ पाथवे जो बेसिकली हम मेटाजोन की डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, या हम सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं कि जहां भी सेल डिविजन्स हो रही हैं वहां आपको रैस रैफ पाथवे मिलेगा। अब क्योंकि ये सेल डिविजन्स के साथ रिलेटेड है तो इस पाथवे से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। रैस रैफ पाथवे में अगर कोई
चेंज आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये पाथवे अगर ना काम कर पाए या ये पाथवे इस तरह से काम करे कि आपको अनकंट्रोल्ड डिविजन्स मिले, क्योंकि ये डिविजन्स के साथ एसोसिएटेड है। सो यू ऑल नो कि अगर अनकंट्रोल्ड डिविजन्स होती हैं तो बेसिकली हम उसको कैंसर में स्टडी करते हैं। सो क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिविजन्स इस पाथवे में डिफेक्ट की वजह से भी आपको मिल सकते हैं, दैट मीन्स कैंसर होने के चांसेस में एक आप इस फैक्टर को भी कंसीडर कर सकते हो। किसी इंडिविजुअल में अगर इस पाथवे में डिफेक्ट है तो वहां भी उसको कैंसर डेवलप किया जा सकता है। इसलिए बहुत सारी कैंसर की ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली इस पाथवे के डिफेक्ट्स के साथ भी डील करती हैं। मीन्स अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पाथवे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए क्योंकि ये कैंसर की स्टडीज में कैंसर के साथ कैसे डील करना है उसमें भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें कैंसर क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि ये पाथवे में कोई डिफेक्ट था, कोई पर्टिकुलर प्रोटीन काम नहीं कर पाया, तो उसको टारगेट किया जा सकता है टू ट्रीट दैट कैंसर। ठीक है, सो इसलिए ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट वाइज, सेल डिवीजन के फैक्टर से देखें या फिर हम अगर कैंसर स्टडीज से रिलेटेड देखें तो दिस पाथवे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next we'll do insulin signaling. Again we'll see that in insulin signaling we have RTKs, that is receptor tyrosine kinase। और इंसुलिन सिग्नलिंग का मतलब क्या है बेसिकली, जिसमें इंसुलिन एज ए हार्मोन और एज ए लिगैंड विल इंटरैक्ट विद इट्स रिसेप्टर। जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करता है, व्हाट रिस्पॉन्स आर वी गोइंग टू गेट, विल सी इन दैट सिग्नल पाथवे। सो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल है दैट इज इंसुलिन, एंड रिसेप्टर को हम सिंपली इंसुलिन रिसेप्टर कह सकते हैं। सो जनरली इंसुलिन रिसेप्टर जो होता है दैट इज स्टेबल डाइमर। ठीक है, क्योंकि हमने आरटीकेस में पहले ही कहा था रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस जो होते हैं वो ऑलरेडी डाइमर्स हो सकते हैं या फिर वो लिगैंड के बाइंडिंग से भी डाइमर्स एक्ट कर सकते हैं। सो वो डाइमर है, ये क्लियर है। बट अगर हम एक अब इंसुलिन रिसेप्टर में डाइमर में से एक मोनोमर की बात करें तो वो अल्फा एंड बीटा दो चेन से बना होता है। टू डिफरेंट चेन्स हैं तो हम कह सकते हैं हेट्रोडाइमर। मतलब इंसुलिन रिसेप्टर का जो एक यूनिट है वो मेडअप होता है किससे, अल्फा और बीटा चेन से बना होता है इंसुलिन का एक यूनिट। हेट्रोडाइमर हम कह रहे हैं बिकॉज अल्फा एंड बीटा चेन्स आर डिफरेंट। सो यूजुअली अल्फा चेन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन्स ये कंप्लीटली सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। बट द बीटा चेन जो है उसमें नॉर्मली जैसे रिसेप्टर में 3 पार्ट्स होते हैं वैसे प्रेजेंट होता है। बीटा चेन हैज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड इंट्रासेलुलर और यू कैन से साइटोप्लाज्मिक डोमेन। एंड क्योंकि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, सो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी लाइक वी डिड इन द RAS-RAF पाथवे कहाँ प्रेजेंट थी रिसेप्टर में, इन द साइटोप्लाज्मिक डोमेन। सिमिलरली इसमें भी जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन होगा दैट विल हैव काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, सो इंसुलिन विल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर हमने बता दिया। अब जो अल्फा और बीटा चेन्स हैं, क्योंकि हमने कहा कि एक रिसेप्टर यूनिट में अल्फा और बीटा हेट्रोडाइमर बनता है, तो अल्फा और बीटा आपस में कैसे ज्वाइंट होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, और अब अल्फा बीटा से एक रिसेप्टर यूनिट बन गया। नाउ वन रिसेप्टर यूनिट इज लिंक्ड टू अनदर रिसेप्टर यूनिट अगेन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और एक्चुअल में दो रिसेप्टर यूनिट्स लिंक्ड कहां पे होती हैं, बाय अल्फा चेन्स। सो 2 अल्फा चेन्स आर आल्सो लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चला है। 2 रिसेप्टर यूनिट्स हैं जो डाइमर बना रही हैं जिसमें अल्फा और बीटा चेन्स हैं। लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। सो हमने क्या कहा था कि इंसुलिन रिसेप्टर में वी हैव अल्फा चेन एंड वी हैव बीटा चेन। अल्फा चेन कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर था और बीटा चेन के 3 पार्ट्स थे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, देन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, देन साइटोप्लाज्मिक डोमेन। सो हमने वही शो किया है, बीटा जो चेन होगी उसमें तो तीनों पार्ट्स आपको नजर आएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। ये बीटा चेन है। ये बीटा चेन अल्फा चेन के साथ लिंक्ड है ड्यू टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब
अल्फा और बीटा, एक हेट्रोडाइमर जो है, ये अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर एक रिसेप्टर यूनिट बना रहा है। हमने कहा कि जो इंसुलिन का रिसेप्टर होता है वो स्टेबल डाइमर्स होते हैं, इसका मतलब 2 यूनिट्स हैं, तो ये एक हो गया और ये सेकेंड यूनिट हो गया, उस यूनिट में भी अल्फा और बीटा चेन होंगे। 1 यूनिट ऑफ रिसेप्टर इज लिंक्ड टू अनदर यूनिट थ्रू अल्फा चेन्स, अल्फा चेन्स के बीच में भी अब क्या होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। सो इट्स क्लियर कि रिसेप्टर की एक यूनिट में अल्फा और बीटा चेन है, अल्फा और बीटा आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड है, अल्फा चेन कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर है, बीटा चेन है जिसमें आपके पास 3 पार्ट्स मिलेंगे जो रिसेप्टर्स के होते हैं, और उसके बाद 2 रिसेप्टर यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, बट लिंक्ड कैसे हैं, थ्रू अल्फा चेन्स के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। सो यहाँ हमने शो किया दिस इज द रिसेप्टर। अब सपोज यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन आता है, तो वो इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे हमने शो कर दिया, यहाँ लिंक हो जाता है, वो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो एक ही इंसुलिन जो है मॉलिक्यूल विल इंटरेक्ट विद दिस डाइमर। अब आपके पास क्या हो गया, इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने पहले कहा था, जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट मीन्स दैट रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड, एंड बिकॉज दिस इज आरटीके, सो आरटीके का एक्टिवेशन कब होता है, जब उसके टायरोसिन रेजिड्यू पे क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, और वो साइटोप्लाज्मिक डोमेन में होता है। ठीक है, सो अब हम ये शो कर रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन है और उसमें जहां टायरोसिन रेजिड्यूज होंगे वहां उसकी क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेशन। समटाइम्स हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हम कहते हैं ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। ट्रांसफॉस्फोराइलेशन का जस्ट मतलब क्या है कि वो खुद की फॉस्फोराइलेशन तो कर रहा है, दिस इज ऑटो फॉस्फोराइलेशन तो है ये। ट्रांस वर्ड तब कह सकते हैं जब एक रिसेप्टर यूनिट एक दूसरे की कर देता है, मतलब ये रिसेप्टर यूनिट इसकी फॉस्फोराइलेशन और ये रिसेप्टर यूनिट इसकी फॉस्फोराइलेशन, तो आप ये भी कह सकते हो कि इसकी ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है क्योंकि ये खुद की फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, और इसको हम ट्रांस भी कह सकते हैं क्योंकि 2 डाइमर्स हैं, तो डाइमर्स हैं सॉरी, तो डाइमर्स में 2 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट दूसरे का फॉस्फोराइलेशन कर रही है। अब एक बार इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, दैट मीन्स दिस रिसेप्टर इज एक्टिव टू बाइंड विद आरटीकेज। जनरली मैंने 2 डोमेन्स आपको पहले बताए, द प्रोटीन मस्ट हैव SH2 डोमेन और PTB डोमेन। सो पहले रैस रेफ पाथवे में हमने क्या किया, दैट GRB2 जो बाइंड करता था दैट हैज SH2 डोमेन, जो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ बाइंड करता था। इंसुलिन के केस में यहाँ इंटरैक्ट करेगा 1 प्रोटीन जिसको हम कहेंगे IRS, दिस इज IRS। IRS means insulin receptor substrate। इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट को हम एक डॉकिंग प्रोटीन मानते हैं। डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग मीन्स द प्रोटीन विच प्रोवाइड्स साइट्स फॉर द बाइंडिंग ऑफ अदर प्रोटीन्स, जहां पे डॉक किए जा सकते हैं, डॉक मीन्स जहां बाइंड किए जा सकते हैं डिफरेंट, तो हम ये कह सकते हैं जो IRS है, देखो IRS का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जहां पे वो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो उस वहां पे कौन सा डोमेन प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट है उसके पास PTB डोमेन। ठीक है, अब PTB डोमेन के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे PTB डोमेन के साथ साथ यहाँ पे एक और डोमेन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं PH डोमेन। PH डोमेन जो होता है वो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। मतलब अगर हम IRS की बात करें तो 2 तरह के IRS अभी तक हमने देखे, IRS1 एंड IRS2। ठीक है, 2 टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, और IRS का जर्नल स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें एक N टर्मिनल PH डोमेन है, और हमने पहले कहा जो PH डोमेन है वो क्यों प्रेजेंट है, टू इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन। एंड इंसुलिन रिसेप्टर में फर्स्ट हमने पढ़ लिया PH डोमेन है, देन सेकेंड इसमें क्या प्रेजेंट है, PTB डोमेन। PTB डोमेन क्यों प्रेजेंट है, टू इंटरैक्ट विद phosphorylated tyrosine residues of receptor।
रैस रैफ पाथवे में हमारे पास GRB2 के पास कौन सा डोमेन प्रेजेंट होता था, SH2 डोमेन प्रेजेंट होता था, लेकिन यहाँ पे कौन सा डोमेन प्रेजेंट है, PTB। सो जो भी प्रोटीन्स RTKs के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और RTKs के साथ वो इंटरेक्ट तभी करेंगी जब RTKs की फॉस्फोराइलेशन हो चुका है। तो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन्स जो RTKs में प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए या तो प्रोटीन के पास PTB डोमेन होना चाहिए या फिर उसके पास SH2 डोमेन होना चाहिए। जो आपने रैस रैफ पाथवे किया उसमें हमने देखा उस प्रोटीन के पास SH2 डोमेन था। यहाँ इंसुलिन सिग्नलिंग में हम देख रहे हैं द प्रोटीन विच इज इंटरेक्टिंग विद RTKs हैज PTB डोमेन। ठीक है, PH डोमेन है टू इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स एंड PTB डोमेन टू इंटरेक्ट विद फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज। एंड थर्ड पोर्शन इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो IRS हमने बनाया उसका थर्ड पोर्शन क्या है, इट हैज ए लॉन्ग टेल with tyrosine sites for other proteins। टायरोसिन साइट्स हैं तो ऑब्वियसली इन टायरोसिन साइट्स की फॉस्फोराइलेशन कर दी जाती है। जैसे ही वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है वो डिफरेंट टायरोसिन रेजिड्यूज पे फॉस्फोराइलेशन करता है। नाउ दिस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन साइट्स आर एक्ट एज डॉकिंग साइट्स फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, इनको हम डॉकिंग साइट्स कह देते हैं सिंपली। यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स इंटरैक्ट कर सकती हैं। अब हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि इंसुलिन के सिग्नलिंग में अभी तक हमने जस्ट IRS का स्ट्रक्चर देखा, तो स्टेप वाइज इफ वी रिकॉल, देन फर्स्ट स्टेप वाज बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू रिसेप्टर, second step we can say activation of receptor by phosphorylation of tyrosine residues, third step we can say binding of IRS is insulin receptor substrate जो bind करता है with the help of PTB domain with phosphorylated tyrosine residues। अब इस जो IRS है उसका भी एक्टिवेशन हो गया बिकॉज इट हैज नाउ फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज। बहुत सारे फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज हैं विच कैन एक्ट एज डॉकिंग साइट्स फॉर बाइंडिंग ऑफ अदर प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्योंकि हम यहाँ इंसुलिन सिग्नलिंग देख रहे हैं, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि अब इंसुलिन की सिग्नलिंग में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब जो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू साइट्स हैं देयर an enzyme PI3 kinase can interact। PI3 kinase, so जो PI3 kinase है बेसिकली काइनेज तो है ही ये, मतलब ये फॉस्फोराइलेशन करके खुद को भी एक्टिवेट कर सकता है, किसी और को भी एक्टिवेट कर सकता है। एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन कुछ भी हो सकता है फॉस्फोराइलेशन से। इट कैन फॉस्फोराइलेट इटसेल्फ और एनी अदर डिफरेंट प्रोटीन। सो PI3 काइनेज इज आल्सो एन एंजाइम। बेसिकली PI3 काइनेज क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ सम फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो हम PI3 काइनेज को मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड शो कर रहे हैं। PI3 काइनेज का फंक्शन क्या है, यहाँ हम रिएक्शन शो कर रहे हैं, मेम्ब्रेन में ही PIP2 प्रेजेंट है, इट विल कन्वर्ट PIP2 टू PIP3। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो साइड्स होती हैं, जो साइटोप्लाज्म की साइड है उसको हम इनर लीफलेट कह देते हैं, जो आउटर साइड है उसको हम आउटर लीफलेट कह देते हैं। सो PIP3 इज प्रोड्यूस्ड ऑन द इनर लीफलेट साइड, क्योंकि PI3 काइनेज यहाँ IRS जो है वो भी यहाँ मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, PI3 काइनेज भी मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। इसने जस्ट इसके साथ बाइंडिंग किया। PI3 काइनेज जो है फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ बाइंड कर रहा है। दैट मीन्स PI3 काइनेज एक एंजाइम है और इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, SH2 डोमेन प्रेजेंट है टू इंटरैक्ट विद फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज। ठीक है, अब PI3 काइनेज क्या करेगा, बेसिकली थर्ड पोजीशन पे PI3 का मतलब है वो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन करता है। PIP2 इसमें ऑलरेडी 2 फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी एडेड है, अब बन जाएगा हमारे पास PIP3। तो PIP3 का मतलब है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट हम कह सकते हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो अब यूजुअली PIP2 से बना रहे हैं, तो PI3 काइनेज तो जस्ट थर्ड पोजीशन पे ऐड कर रहा है। दैट मीन्स PIP2 में ऑलरेडी
क्योंकि दो फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, इसका मतलब फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे ऑलरेडी फॉस्फेट है। अब उसने फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल जो डाई फॉस्फेट था, PiP2 का मतलब क्या है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, Pi तो वही है लेकिन 4,5 डाई फॉस्फेट है, उसके फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट अटैच्ड है। PI3 काइनेज ने जस्ट उसको क्या किया, थर्ड पोजीशन पे ऐड कर दिया। अब PIP3 एक फॉस्फोलिपिड है, वो बन गया, और सेकंड मैसेंजर्स हैं ये, देखा जाए फॉस्फेटिडाइल इनोसिटाइड डेरिवेटिव्स हम इनको कह सकते हैं। तो ये PIP3 जैसे ही बनता है, एक सेकंड मैसेंजर है, तो आगे आपका जो सिग्नल है जो आ रहा है वो आगे एम्पलीफाई होता जा रहा है, ठीक है। अब इस PIP3 जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसके साथ इंटरैक्ट क्या कर सकता है, क्योंकि PI3 काइनेज है, ये बहुत सारे PIP3 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनाएगा। सेकंड मैसेंजर जो होते हैं हमेशा उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट मैसेंजर हम किसे कहेंगे, फर्स्ट मैसेंजर इज इंसुलिन, बिकॉज इट इज कैरिंग इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में पहला स्टेप था वहां पे इंसुलिन बाइंड किया। सो फर्स्ट जो मैसेज लेके आ रहा है, दैट आगे जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, उस रिस्पॉन्स के लिए जो फर्स्ट मैसेज लेके आया दैट इज इंसुलिन, सो वी कॉल इट फर्स्ट मैसेंजर। बट अब हमारे पास यहाँ एक्टिवेशन होने के बाद ये सेकेंड मैसेंजर बन गया। तो सेकेंड मैसेंजर वो होता है जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आगे एम्पलीफाई करता है। ओके, नाउ PIP3 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन गए। नाउ विद दिस PIP3 another type of kinase can interact, we call it PDK1। ठीक है, ये एक काइनेज है तो इसका मतलब ये फॉस्फोराइलेशन करता है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरैक्ट कर जाता है। PIP3 के जो एक्चुअल में फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जहां पे 3 पोजीशन पे, उनको आइडेंटिफाई करता है। और PDK1 का मतलब क्या है, PIP3 एसोसिएटेड काइनेज। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PDK1? PDK हम कह सकते हैं इट्स ए काइनेज, पर किस टाइप का काइनेज है, दिस इज ST काइनेज। ST मीन्स serine threonine kinase। so इसके नेम से आपको पता चल रहा है, दैट मीन्स इट विल कॉज phosphorylation at serine and threonine residues। so it's a ST काइनेज। PDK1 क्या करता है, अब ये तो खुद से तो एक्टिवेट हो ही गया जब वो PIP3 के साथ इंटरैक्ट किया, एसोसिएटेड काइनेज है। अब ये क्या करता है, इट फर्दर एक्टिवेट्स PKB, another type of kinase। PKB की 2 सब यूनिट्स हम शो कर सकते हैं इस तरह से। एक सब यूनिट में हम कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है, पीएच डोमेन। सो इफ यू रिकॉल, हमने पहले ही कहा कि यहाँ भी क्या प्रेजेंट होता है, पीएच डोमेन IRS में। पीएच डोमेन जस्ट हेल्प्स टू इंटरैक्ट विद फॉस्फोलिपिड्स। सो पीएच डोमेन की हेल्प से वो PIP3 के साथ ही इंटरैक्ट कर रहा है। सो PKB जो होता है बेसिकली, ये पूरा PKB है, विद द हेल्प ऑफ पीएच डोमेन इंटरैक्ट करता है। अब जैसे ही वो इंटरैक्ट करता है विद PIP3, देयर इज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन PKB। कन्फॉर्मेशनल चेंज इस तरह से होता है कि इसकी जो सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यूज हैं, दैट दे गॉट एक्सपोज्ड। नाउ दिस PDK विल फॉस्फोराइलेट S and T रेजिड्यूज, सीरीन एंड थ्रियोनिन रेजिड्यूज की वो फॉस्फोराइलेशन करता है। बट वो डायरेक्टली PKB के ऐसे फॉस्फोराइलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो सीरीन थ्रियोनिन रेजिड्यूज हैं वो कन्फर्मेशन इस तरह से होती है कि वो एक्सपोज नहीं होते। वो कब एक्सपोज होंगे, जब वो इंटरैक्ट करेगा विद दिस सेकंड मैसेंजर। तो पीएच डोमेन की हेल्प से वो जैसे इंटरैक्ट करता है, इट अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंजेस। नाउ PDK एक्टिवेट दिस PKB, हाउ इट एक्टिवेट PKB बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ सीरीन एंड थ्रियोनिन रेजिड्यूज। नाउ जो इसका पीएच डोमेन है वो तो वैसे ही रहा, वो यहां से PKB डिसोसिएट कर जाएगा। इसकी एक्टिवेशन हो गया, वो पहले इंटरैक्ट किया, कंफर्मेशनल चेंजेस हुए, PDK ने उसका क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेशन कर दिया। नाउ दिस फॉस्फोराइलेटेड PKB इज एक्टिव। दिस फॉस्फोराइलेटेड PKB डिसोसिएट्स। अभी तक देखो हमने जितना भी सिग्नलिंग किया, एवरीथिंग इज मेम्ब्रेन बाउंड। नाउ दिस PKB विल डिसोसिएट। डिसोसिएट करने के बाद ये हमें क्या फंक्शन देगा, फंक्शन क्या है PKB का, आपको डिफरेंट फंक्शंस मिल सकते हैं। दिस PKB विल हेल्प इन ग्लूकोज अपटेक, इट कैन हेल्प इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और इट कैन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। What is PKB? PKB means protein kinase B. It's also a protein kinase.
सो इंसुलिन सिग्नलिंग अगर हम स्टेप वाइज फिर से रिकॉल करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन विद रिसेप्टर, वी गेट इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. Now after binding of receptor with insulin, it will show transphosphorylation, or simply we can say autophosphorylation. Phosphorylated tyrosine residues can act as site for binding of IRS. IRS we have two, IRS1 and IRS2. IRS के पास 3 domains हैं. IRS has one pH domain for binding with phospholipids in the plasma membrane. Number 2, it has PTB domain for binding with phosphorylated tyrosine residues of the receptor. Number 3, it has a long tail with tyrosine residues that can act as docking sites for binding of different other proteins. So जैसे ही IRS बाइंड करेगा विद रिसेप्टर, IRS की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा. नाउ विद दिस फॉस्फोराइलेशन, phosphorylated tyrosine residues are there. With that PI3 kinase can bind. सो अभी तक हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, देन IRS उसके साथ बाइंड कर गया, देन नेक्स्ट बाइंडिंग ऑफ PI3 काइनेज. PI3 काइनेज इज एन एंजाइम. सो बेसिकली वो मेम्ब्रेन में ही जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका कन्वर्जन करता है PIP2 से कि वो क्या बना देता है PIP3. दोनों ही सेकेंड मैसेंजर्स एक्ट करते हैं, बट इंसुलिन की सिग्नलिंग के लिए हमें PIP3 चाहिए. PIP3 में 3 फॉस्फेट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करता है PDK1. सो PDK1 इंटरेक्ट करेगा, एक्टिव हो जाएगा, बट बेसिकली उसको किसको एक्टिवेट करना है? PKB को. PKB इज प्रोटीन काइनेज बी, और बेसिकली PKB है जो आगे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज देगा. बट PKB की एक्टिवेशन के लिए सीरीन थ्रियोनिन रेजिड्यूज की फॉस्फोराइलेशन करना जरूरी है, बिकॉज PDK इज ए ST kinase. So once it binds to PIP3, it undergoes conformational changes. Now PDK can phosphorylate serine and threonine residues, or ultimately we will get active PKB. Now this active PKB will dissociate from the membrane and it will move to perform different function, different responses we will get. ग्लूकोज अपटेक, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, हमें कुछ भी मिल सकता है फंक्शन फ्रॉम एक्शन ऑफ PKB. सो अभी तक इंसुलिन की सिग्नलिंग में वी कैन से जो इंपॉर्टेंट एक एक्टिवेशन है वो किसका हुआ है? PKB का. अभी तक बाकी जो भी बाइंडिंग हुआ, IRS का बाइंडिंग हुआ, PI3 काइनेज का बाइंडिंग हुआ, PDK1 का बाइंडिंग हुआ, PKB का बाइंडिंग हुआ, वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड है, सब मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है. नाउ दिस PKB विल मूव, और हम ये 3 फंक्शंस देखेंगे हमें कैसे मिलेंगे. Now we can again consider this cell. इस सेल की हम बात कर रहे हैं और इस सेल में इंसुलिन का सिग्नलिंग चल रहा है. दैट मीन्स हम यहाँ शो कर रहे हैं दैट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम शोइंग दिस इंसुलिन, और इंसुलिन के साथ हमने शो कर दिया यहाँ रिसेप्टर. तो अब आपके पास इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया. इंसुलिन रिसेप्टर के साथ क्या बाइंड करता था? IRS. IRS1 सपोज हमने लिख दिया. IRS1 के साथ बाइंड किया था PI3 काइनेज. देन PI3 काइनेज जो था उसने एक्टिवेशन किया और आगे अल्टीमेटली PIP3 बनाया. PIP3 के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ पहले हम शो कर दिया PDK1, और उसने एक्टिवेशन कर दिया किसका? PKB. तो अभी तक हमने यही स्टडी किया दैट इंसुलिन का रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बना, देन IRS बाइंडिंग, देन PI3 काइनेज एक्टिवेशन, PIP3 फॉर्मेशन, एक्टिवेशन ऑफ PDK1, देन एक्टिवेशन ऑफ PKB. PDK1 एंड PKB बोथ आर काइनेजेस, दोनों में ही pH डोमेन प्रेजेंट होंगे, तभी वो PIP3 के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों ही सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस हैं. मींस PDK1 एंड PKB दोनों ही सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस है, दोनों के पास pH डोमेन है. अब इसके बाद हमने कहा दैट PKB विल डिसोसिएट. PKB डिसोसिएट करके क्या करता है? बेसिकली फर्स्ट हमने कहा दैट इट विल हेल्प इन ग्लूकोज अपटेक. सो इसका मतलब ये सेल है और इस सेल ने ग्लूकोज अपटेक करना है, तो दैट मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस सेल के बाहर यहाँ प्रेजेंट हैं. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमने ऐसे शो कर दिए. नाउ PKB हेल्प करता है ग्लूकोज अपटेक में. हाउ? बिकॉज इट एक्टिवेट फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स कंटेनिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है. सो अगर सपोज हमने ये वेसिकल शो किया जिसमें बहुत सारे कैरियर्स प्रेजेंट हैं जो ग्लूकोज का अपटेक करने में हेल्प कर सकते हैं. हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी हम कोई ऐसे का वेसिकल शो करते हैं, जो साइड साइटोप्लाज्म की तरफ होती है वो साइड हमेशा टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म ही रहता है आफ्टर फ्यूजन ऑल्सो. ठीक है. सो दिस इज द वेसिकल कंटेनिंग डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स. नाउ PKB विल एक्टिवेट फ्यूजन ऑफ दिस वेसिकल.
जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसका फ्यूजन होगा तो सिंपली क्या होगा, दीज ट्रांसपोर्टर्स विल नाउ बी सीन इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही इंसुलिन की सिग्नलिंग होती है, नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इंक्रीज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जैसे ही उनका नंबर बढ़ेगा ग्लूकोज अपटेक भी ज्यादा होगा। कैसे, जब ये वेसिकल फ्यूज करेगा, नाउ दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स विल बी लाइक दिस। हमने इस तरह से क्यों बनाया, बिकॉज जो साइड आपने टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म रखा है वही साइड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म रहेगा। द साइड टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द वेसिकल विल कम टू द आउटर साइड। ठीक है, वो हमेशा जो बाहर की तरफ की साइड होती है उसी को ल्यूमन के अंदर रखा जाता है। जो साइटोप्लाज्म की साइड है वो साइटोप्लाज्म में रह सकता है, क्योंकि प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, सो जो साइड आपने साइटोप्लाज्म की तरफ को बनाई वही साइड यहाँ भी हम साइटोप्लाज्म की साइड रखेंगे। जो ल्यूमन की साइड है वो आउटर साइड पे आएगा। अब यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर, जनरली ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। दिस विल टेक इंसुलिन, दिस विल टेक ग्लूकोज एंड देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा, इट विल रिलीज ग्लूकोज ऑन द इनर साइड। इस तरह से ग्लूकोज का अपटेक हुआ और ग्लूकोज अंदर की तरफ को रिलीज कर दिया गया। ठीक है, इसको हम कह देंगे सिंपली ग्लूकोज अपटेक। सो फर्स्ट फंक्शन हमने पीकेबी का क्या किया, जिसमें वो ग्लूकोज अपटेक में हेल्प करता है। क्यों, बिकॉज इट इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाउ इट इंक्रीजेस, बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स कंटेनिंग दीज ट्रांसपोर्टर्स। जितने ज्यादा ट्रांसपोर्टर्स यहाँ बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक हो जाएगा। सो पीकेबी बेसिकली, क्योंकि इंसुलिन का काम ही यही होता है, हम यही मानते हैं, जब इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है बेसिकली वो ब्लड से ग्लूकोज का अपटेक करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही इंसुलिन रिलीज किया जाएगा हार्मोन, इसका सिग्नलिंग होगा, जिस सेल में सिग्नलिंग हो रहा है उसी सेल में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का जो नंबर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेसिकल्स का फ्यूजन हो जाएगा। और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि जब इंसुलिन हार्मोन आया, उसकी सिग्नलिंग स्टार्ट हुई, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, ग्लूकोज अपटेक इन द सेम सेल। नेक्स्ट, वो ग्लूकोज अपटेक के साथ साथ पीकेबी क्या कर सकता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को भी एक्टिवेट करता है। तो वी ऑलरेडी नो दैट ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेज। दिस मस्ट बी एक्टिव। अगर ये एक्टिव है तो हमें ग्लाइकोजन की सिंथेसिस मिलेगी। बट होता क्या है, यूजुअली ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है बाय ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GSK3 कहते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज। अब ये काइनेज है, सो ये क्या करता है, इस ग्लाइकोजन सिंथेज की सीरीन और थ्रियोनिन पे फॉस्फोराइलेशन कर देता है, क्योंकि GSK3 भी एक ST काइनेज है। तो GSK जब तक एक्टिव है वो इसको सप्रेस कर रहा है, वो इनहिबिट कैसे कर रहा है, क्योंकि वो इसकी फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। जब तक ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेज में है तब तक हमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं मिलता। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली अगर हमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस चाहिए तो हमें इसका एक्टिवेशन चाहिए। इसका एक्टिवेशन तभी हो सकता है, पहली बात इसकी फर्दर फॉस्फोराइलेशन ना हो और जो ऑलरेडी फॉस्फेट अटैच्ड है वो रिमूव कर दिए जाए। तो हमें GSK3 के एक्शन को अगर ब्लॉक कर दिया, अगर ये काम ना करे तो ऑब्वियसली इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। अगर फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो सिंथेसिस अपने आप चलता रहेगा। तो पीकेबी क्या करता है, पीकेबी बेसिकली इनहिबिट दिस काइनेज। एक तो उसने ग्लूकोज अपटेक किया, दूसरा वो इनहिबिशन करता है इस काइनेज की। अगर पीकेबी GSK3 को इनहिबिट करके रखेगा तो ऑब्वियसली वो इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा। अब जो ऑलरेडी इस पे फॉस्फेट अटैच हो गए हैं वो रिमूव किए जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज 1 यहाँ आता है, वो डीफॉस्फोराइलेशन करेगा, और जैसे ही इसकी डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी it will be activated and it will lead to glycogen synthesis। तो पीकेबी का काम क्या है, सिंथेज काइनेज को इनएक्टिव करना, उसकी फॉस्फोर ऑब्वियसली, क्योंकि जो पीकेबी है वो भी एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, तो वो इसको इनहिबिट कैसे करता है, क्योंकि वो इसकी भी क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेशन। सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, वो इसकी फॉस्फोराइलेशन करके इसकी इनहिबिशन हो गया। ये इसकी इनहिबिशन करता था बाय फॉस्फोराइलेशन, तो अब वो नहीं कर पाएगा, और फॉस्फेटेज आएगा, इसके इनहिबिटरी जो फॉस्फेट ग्रुप थे उनको रिमूव करेगा और अल्टीमेटली ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो जाएगी। लाइकवाइज पीकेबी जो है वो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी एक्टिवेट कर सकता है, और ये भी देखा गया है कि पीकेबी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है।
सो इंसुलिन के सिग्नलिंग से हमें ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेज मिले और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स जो होता है दैट इज ग्लूकोज अपटेक। सो पीकेबी बहुत इंपॉर्टेंट काइनेज है जो इंसुलिन की सिग्नलिंग में एक्टिवेट किया जाता है, बट यू शुड नो कि इंसुलिन के सिग्नलिंग में भी हम बेसिकली आरटीकेजेस मीन्स रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस उन रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसुलिन सिग्नलिंग। I hope you all get a very good idea of insulin signaling and RAS-RAF pathway. Basically, it's just a story. You have to just learn which signal is interacting with which receptor and ultimately what downstream signaling proteins are activated and what is the final response. So, directly एक simple questions में भी पूछा जा सकता है that if insulin signaling is happening, then what is the response? So, basically अगर insulin आता है तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज अपटेक हो सकता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, ये फाइनल रिस्पॉन्सेज हैं। बट एक्चुअल में इंसुलिन कौन से रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, आरटीकेज। रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद कौन सी प्रोटीन्स एक्टिवेट हो रही हैं वो आपके पास डिफरेंट है। कहां तक की जो प्रोटीन्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा फ्री प्रोटीन है। पीकेबी इज फर्स्ट इट इज एक्टिवेटेड व्हेन इट इज बाउंड टू मेम्ब्रेन विद पीएच डोमेन, लेकिन उसके बाद पीकेबी जो है वो फ्री हो जाता है, इट कम्स इन साइटोप्लाज्म और उसके बाद वो वेसिकल्स का फ्यूजन करवाता है। सो आपको इस सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इवन समटाइम्स इन पार्ट सी ऑफ CSIR दे विल शो दैट वन ऑफ द प्रोटीन इज म्यूटेटेड, कोई भी सिग्नलिंग प्रोटीन को वो म्यूटेशन कॉज कर देंगे और अल्टीमेटली आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये म्यूटेटेड है तो उसके बाद हमें कौन सा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं कहती हूँ सपोज कि यहाँ PI3 काइनेज काम नहीं करता तो दैट मीन्स PIP3 विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अगर सेकेंड मैसेंजर ही नहीं है दैट मीन्स पीकेबी का एक्टिवेशन नहीं होगा, तो आपने जो रिस्पॉन्सेज पढ़े हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सो सिमिलरली आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, समटाइम्स दिस होल पाथवे इज गिवन और आपको एक सिनेरियो दिया होता है एंड आपको उसके में से क्वेश्चन ढूंढना होता है। बट दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्रिपेयर वेल फॉर दीज टॉपिक्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।